Last time we were discussing different types of malware. One of malware is Conficker worm. Conficker worm was actually developed or created or designed for the Windows users. And millions of computers actually infected by this this worm. And actually, you know, I mean, the targeted computers were those computers that were not up to date. Operating system, you know, whenever the organizations who actually provide such kind of platforms like Microsoft is providing Windows, when they find loopholes, they actually come up with the patches, security patches. And if, I mean, there is possibility many users are not actually interested in regular updates. पाकिस्तान में क्या होता है खास तौर पे हमारे जो होते हैं, ठीक है, if we are using pirated Windows, we are not interested to actually update it regularly. So if we are not updating regularly, then we are actually the kind of target for those worms. So that worm was not actually really harmful for the computers. कोई ऐसा नॉन कोई वो नहीं है कि इसने कुछ ऐसा सीरियस डैमेज किया हो टू कंप्यूटर यूजर्स, बट स्टिल इट इज ए वर्म, सो इट वाज स्प्रेडेड टू मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स. एक देखें, एक प्रॉब्लम तो बहरहाल आप एक क्या कहना चाहिए, इरिटेशन तो फील करते हैं ना. एक आपके सिस्टम के ऊपर कुछ ऐसा वायरस है, कुछ ऐसा वर्म है जो गैर जरूरी तौर पर हर जगह अपीयर हो रहा है. हर फोल्डर के अंदर जो है ना एक फाइल ऐसी नजर आ रही है, आपको तकलीफ होती है ना, उलझन होती है. तो ये वर्म था ना, ये इसी टाइप का वर्म था, ठीक है. मतलब देखें, पर्पस ऑफ वर्म स्टिल अननोन, बट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आर इन्फेक्टेड बाय दिस वर्म. द टाइटल और द नेम ऑफ दैट वर्म वाज कॉन्फिगर. क्रॉस साइटिंग स्क्रिप्टिंग. क्रॉस साइटिंग स्क्रिप्टिंग से क्या समझ आती है आपको? जी बताएं मंसूर. अगर कोई वेबसाइट सही सिक्योर नहीं है तो हम उस पे अपना कोड डाल सकते हैं जो बाकी यूजर्स को नजर आएगा. और अगर हमने कोई एप्लीकेशन उधर डाउनलोड लिंक दिया हुआ है जबकि वो वेबसाइट ऑनर ने नहीं डाला, हमने डाल दिया, तो हो सकता है मालवेयर. Exactly, the sites that are not actually really secure sites, and you can actually upload, you can actually embed your piece of code on that website, and when someone visits that website, he or she actually probably download that content and then get infected. Okay, that is cross-site scripting. And obviously, you see, inject, the word inject, we will discuss later on. SQL injections. What is SQL injections? जिनका SQL database कॉन्फ़िगर सही तरह से नहीं होता, डायरेक्ट कमांड्स SQL database को जारी होती है, तो एक्सप्लॉइट करके हम डेटाबेस हासिल कर सकते हैं और शेयर कर. Exactly. SQL वैसे आप डेटाबेस का कोर्स पढ़ रहे हैं? पढ़ा नहीं, अभी नहीं, ठीक है. तो बेसिकली जो SQL है, ठीक है, that is query language, structured query language is the abbreviation. कैसे आपको एग्जांपल दूं? If we have a database, we have a data of like 50 students. Now we actually want to actually retrieve the name of those students who got A grades. So we will write the query. We will write the statement. That specific statement is actually the query in that context, in that terminology. ठीक है? In databases. ठीक है? So SQL is actually the standard query language, structured query language. You can write different type of queries, and then you can actually get the information and the data, access to the data on the client's computers. That is actually it is also kind of script. Okay, so obviously what will happen if the script is actually executed on the computer, then you can get different type of information, like you can get the information that is available in the cookies. You can get the details of user activity and so on. Okay, drive-by downloads. Drive-by downloads are also, you know, are the
software, piece of code that are available to actually the malicious kind of websites. When you visit websites and you find like okay, अब वो देखें अक्सर जो होता है इस तरह से, जो कभी आपने अगर ट्राई किया हो ना, कोई मैच नहीं आ रहा, क्रिकेट मैच नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप कोई साइट ढूंढते हैं जहाँ पे स्ट्रीमिंग हो ऑनलाइन, तो इस तरह की जो स्ट्रीमिंग साइट्स होती हैं उस पर बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स के जो है ना लिंक बने होते हैं, क्लिक्स बने होते हैं, कुछ तो होते हैं वो जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स ना, कि आप क्लिक करते हैं और वो आपको रीडायरेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं कि आपके सिस्टम पे डाउनलोड कर देते हैं कुछ पीस ऑफ कोड, ठीक है, और समटाइम्स यू एक्चुअली voluntarily you have the intention, willingly you actually accept it. I mean, you just get the message, okay, are you agree to download this content, like okay, are you are you agree to actually run the flash player? You say yes, okay, and then maybe some other piece of code is actually executed on your machine. That is actually drive by downloads, okay. And again, the objective is to actually do some kind of unintended activity. That can be stealing of data, that can be recording of your activity, whatever it is. And obviously, you see, there are millions of websites that are actually malicious websites. They have like these kind of worms or viruses. When you visit such kind of sites, you get these types of viruses, okay. According to Google, 1.3% of queries to Google search actually displays you the malicious content somewhere. ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि गूगल आपके लिए सर्च करता है, जो वेबसाइट्स आपको दिखाता है तो वो सारी बड़ी क्लीन, बड़ी नीट साइट्स हैं जो कि जिस पे कोई ऐसा malicious content नहीं है, ठीक है ना. तो obviously when millions of sites are with malicious content, then obviously in your search results you will get those malicious sites too, ठीक है ना. इसमें कोई ऐसी मतलब अनहोनी बात नहीं है, it's not surprising. Trojan horses and backdoor trojans. Trojan क्या होता है? हैं? वायरस होता है. वो बचपन में एक कहानी पढ़ी थी हमने, पता नहीं आपने भी पढ़ी होगी, वो के नहीं पढ़ी, ट्रोजन. एग्जैक्टली. वो क्या कहानी थी? वो दो बादशाहों की लड़ाई होती है ना, पहले वो एक बादशाह को हरा देते हैं, फिर वो बदला लेने के लिए उसको कहते हैं मैंने हाल मारी, लेकिन अब मैं आपको हॉर्स गिफ्ट करना चाहता हूँ. वो बड़ा सा हॉर्स बनाता है और उसके अंदर अपने सिपाही छुपाए होते हैं. तो वो जब हॉर्स अंदर चला जाता है, दीवार को वो तोड़ नहीं पाता, लेकिन इस तरीके से वो कैसल की दीवार से अंदर चले जाते हैं सारे फौजी को. अच्छा, मूवी भी बनी है इस पे, मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल वो स्टोरी इसी तरह की है कि वो जो कैसल है, ठीक है, वो वहाँ पे अंदर एंट्री नहीं हो पा रही, तो वो क्या एक प्लान करते हैं कि अच्छा एक वुडन हॉर्स बनाते हैं और मतलब वो अंदर जो है ना कैसल वाले वो क्या समझेंगे और बच्चे कि भाई ये कोई सॉर्ट ऑफ टॉय है, और उसके अंदर वो अपने जो भी सोल्जर्स होते हैं वो उसको अंदर घुसा देता है और फिर वो उसको कैसल के अंदर ले जाते हैं कि बच्चे खेलेंगे उससे और सो ऑन, और रात में फिर वो उसको तोड़ के बाहर निकल आते हैं, और स्ट्रेटजी है ना. तो दैट इज ट्रोजन हॉर्स, ठीक है. तो ट्रोजन हॉर्स इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है? malicious. I mean, apparently it seems okay, it seems good software, ठीक है, very valid application, but in fact it has some other kind of objectives, again maybe stealing of data, some other kind of activities, ठीक है. तो backdoor trojans क्या होगा? जो access देते हैं attacker को. Exactly, backdoor जो है ना ट्रोजन, वो एक स्टेप और आगे है, ठीक है. ये तो मतलब इन जनरल ट्रोजन क्या करता है कि बस अपेरेंटली एक्टिविटी कुछ और है, लेकिन बिहाइंड द सीन कुछ और एक्टिविटी है, ठीक है. लेकिन बैकडोर जो ट्रोजन्स हैं, ठीक है, दे एक्चुअली गिव द एक्सेस ऑफ दैट विक्टिम्स कंप्यूटर टू द अटैकर, ठीक है, एंड देन दे कैन एक्चुअली control that system, ठीक है. They can actually generate different kind of activities from that
दैट कंप्यूटर, ठीक है। ये भी एक वो है ना, एक स्ट्रेटजी है। रादर देन यूजिंग योर ऑन कंप्यूटर, यू यूज अदर्स कंप्यूटर्स एज ए प्लेटफॉर्म टू एक्चुअली अटैक सम अदर्स कंप्यूटर्स, ठीक है ना। वो जैसे कहते हैं ना, गन ऑन द अदर्स शोल्डर्स, तो ये एग्जैक्टली वही काम है, ठीक है जी मंसूर। सर एक चीज देखिए, हम जैसे ट्रोजन हॉर्सेस की हम बात कर रहे हैं, हम कहते हैं ये भी किसी हिडन होते हैं, तो अब हम जब वायरस को पढ़े थे हम कहते हैं वो भी प्रोग्राम के साथ बाइंडेड आते हैं। अब वॉर्म जो है वो क्या करता है, वो रेप्लिकेट होता रहता है। अब एट अ टाइम्स तीन चीजें, एक कोई सॉफ्टवेयर तो हो सकता है, यानी एक वायरस हो सकता है, यस हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, ठीक है ना। ये तो हम उसके अंदर अब वेरिएशंस को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कि डिफरेंट तरह की है तो सारे मलवेयर, ठीक है। और एक ही प्रोग्राम के अंदर जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मलवेयर हो सकती है, ठीक है, क्वाइट पॉसिबल है, ठीक है। हाँ जी, नहीं देखें इसमें क्या है, ये देखें वहां पे ये बैकग्राउंड में नहीं चलता है। ट्रोजन इज एक्चुअली समथिंग दैट यू एक्चुअली फील समथिंग गुड, समथिंग यूजफुल, ठीक है। और बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द मतलब जो भी आप कह लें उसको, कि एक्टिविटी कुछ और है, ठीक है ना। वो इस पर मतलब बड़ी सिंपल सी बात है ना, कि आप अपेरेंटली कुछ नजर आ रहे हैं और इनफैक्ट कुछ और है। ये मैं इसलिए आज पढ़ा हूं कि हम अपनी लाइफ के अंदर भी जो है ना ऐसे ही है ना, कि बजाय लोगों के सामने तो बड़े अच्छा बनने की कोशिश करते हैं ना, तो लेकिन अंदर के हालात हमारे कुछ और होते हैं। तो इसीलिए मोमिन के लिए बहुत जरूरी है कि वो अंदर और बाहर से एक जैसा हो। वो एक ड्रामा एक पीटीवी पे आया करता था, उसमें ना एक करैक्टर वो दिखाते हैं जो कि इंग्लिश बोलता है, बहुत ज्यादा जो है ना वो मतलब दिखाते हैं कि भाई वो इंग्लिश को बहुत ज्यादा पसंद करता है। जो उर्दू बोलने वाले हैं वो उसको अच्छे नहीं लगते हैं, वो थोड़ा सा लगता है कि यार ये कोई जाहिल किस्म के हैं। और जब वो उसको एक और दोस्त उसको समझाता रहता है कि भाई ऐसे नहीं किया करो, तो वो कहता नहीं तुम भी नहीं समझते हो इस बात को, वगैरह वगैरह। लेकिन जब बीमार पड़ जाता है ना, अपने होश में सही तरह से नहीं होता है, तो फिर वो मतलब वो दिखाते हैं कि उसका रियल क्या है ना, वो इस तरह से। तो उसमें वो क्या करता है कि फिर पंजाबी बोल रहा होता है, ठीक है। मतलब वो भी एक किसी देहाती इलाके से होता है वो करैक्टर जो है, लेकिन वो बहरहाल अपने आप को प्रेजेंट ऐसे करता है कि नहीं वो आपने वो एक ओवरकोट आपने पढ़ा है, वो हमने तो पता नहीं मैट्रिक में एफएससी में कहीं पढ़ा था, पढ़ा हुआ है ना। हाँ, तो ये उसी तरह की है। सॉरी, सेकेंड ईयर में था। गुलाम अब्बास साहब ने लिखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, जो बंदा अंदर बाहर से एक जैसा नहीं है ना, वो क्या है, मुनाफिक है। और मुनाफिक के लिए सबसे ज्यादा सख्त सजा है, सही है ना। मतलब वो कहते हैं कि जो दोज़ख है ना, जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में उनको डाला जाएगा, सबसे सख्त सजा। तो अल्लाह ताला हमें ये मतलब तौफीक दे कि यार हम अंदर बाहर से एक जैसे हो जाए, मतलब जो हम कहते हैं वो करें, जो करते हैं मतलब वो भी हमारा अकॉर्डिंग टू मतलब वो होना चाहिए, ठीक है। अभी एक देखें, एक चीज जो है ना, ये बड़ी कॉमन है। हम गैर जरूरी तौर बातें नहीं करें यार, आपस में बातें नहीं करें। गैर जरूरी तौर पे जो है ना झूठ बोलते हैं, गैर जरूरी तौर पे, ठीक है, जिसकी कोई मतलब रीजन नहीं है, कोई वजह नहीं है। और उसको मुझसे आप देखें, मैं आपको कहता हूँ यार मैं तेरी तरफ चक्कर लगाऊंगा, ठीक है, ये मैंने एक स्टेटमेंट दी है कि भाई आई विल विजिट यू, ठीक, तो आई शुड विजिट, ठीक है ना, मुझे जाना चाहिए। तो अगर मैं जाती नहीं हूँ, दूसरे दिन आप मुझसे शिकवा करें कि भाई क्या आपने विजिट नहीं किया मुझे, तो मैं कहूँगी मैंने तो वैसे ही कहा था, तो ये क्या बात है भाई। मतलब हम इस बात की सेंसिटिविटी को नहीं समझते हैं कि भाई हम किसी को स्टेटमेंट देते हैं तो हम उसको कोई उसके साथ प्रॉमिस कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रॉमिस करना ये नहीं होता है कि आप लफ्जी तौर पे कहें कि अभी मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, आई प्रॉमिस नहीं। जब आप कह रहे हैं, एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यार मैं ये काम करूंगा, तो इट मींस कि यू हैव टू डू इट, ठीक है। तो ये गैर जरूरी तौर पे क्या है कि हम गलत बयानी करते हैं, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, तो हमें वो करनी नहीं चाहिए बात। क्या कहने की जरूरत क्या है कि भाई मैं तुम्हें विजिट करूंगा, ठीक है ना।
तो मेरे साथ कई दफा ऐसे होता है कि मैं बैठा इंतजार करता रहता हूँ और दूसरा बंदा आता ही नहीं है, तो दूसरे बंदे ने ऐसे ही चलते में बात कर दिया, आप उससे पूछें तो वो कहेगा कि नहीं, ऐसे ऑफिस में भी होता है ना, वो कहे अभी मैं यार आपके पास आ रहा हूँ 5 मिनट में, आप अगला आध घंटा बैठे रहते हैं कि यार वो बंदा 5 मिनट में आ रहा है, तो वो कहता है, वो बाद में अगले दिन मिलेगा तो कहेगा सॉरी यार वो मैं बिजी हो गया, तो भाई तो इफ यू वर बिजी तो मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए ना, ठीक है। एनीवेज आगे चलते हैं। रूट किट्स क्या होते हैं? रूट किट privileges escalate करने के लिए, privileges देने के लिए। रूट किट वर्ड ही जो है ना, ये बता रहा है कि कोई एक्चुअली यू आर टारगेटिंग द रूट्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है, काइंड ऑफ यू गेट द एक्सेस टू द सिस्टम एट द कोर, ठीक है ना, और इफ यू हैव द एक्सेस टू द कोर ऑफ द सिस्टम देन you are more privileged kind of user, or that is more privileged kind of program, ठीक है। If this kind of, again it is a malware, ठीक है, with some bad intention, but it is actually, आपने वो टर्म सुनी है सिस्टम रजिस्ट्री, ठीक है ना, रजिस्ट्री फाइल्स, ठीक है, वो सिस्टम फाइल्स होती हैं, वहां पे वो जो है ना बेसिक जो है ना सिस्टम की एक्सेस की बात होती है, ठीक है, सर्विसेज की बात होगी। तो रूट किट्स आर एक्चुअली the kind of files or the program that have access to the root of the system, and it's are actually these kind of files initiated before even the operating system, ठीक है ना। तो मतलब जिस टाइम पे सिस्टम बूट हो रहा होता है उसी टाइम पे ये भी जो है ना ये अब देखें प्रोग्रामिंग के लेवल्स है ना, पहले सबसे बेसिक लेवल क्या है प्रोग्रामिंग का? मशीन कोड है ना, 0 1s, ठीक है, फिर उसके ऊपर वो असेंबली है, फिर उसके ऊपर वो हम कहते हैं, ये आपने वो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, लो लेवल जो है, फिर हाई लेवल, और फिर अब बहुत ज्यादा जो है ना, जैसे अब तो ड्रैग एंड ड्रॉप काइंड ऑफ है। तो जैसे जैसे आप लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस बढ़ाते चले जाते हैं, तो वैसे वैसे आप बेसिकली वो जो सिस्टम है, जो हार्डवेयर है, ठीक है, उससे दूर होते चले जाते हैं। तो जब आपके एक्सेस अगर हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्टली अगर कम्युनिकेशन होगी तो आप ज्यादा इफेक्टिवली उसको वो कर सकते हैं ना, सिस्टम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। एक बहस और तरफ चली जाएगी, लेकिन एनीवेज रूट किट्स आर एक्चुअली द फाइल्स, द प्रोग्राम्स दैट हैव एक्सेस टू द, आई मीन द मोर प्रिविलेज्ड काइंड ऑफ फाइल्स, ठीक है, दैट कैन एक्चुअली ओवरकम the security settings of the systems, ठीक है, and obviously can destroy your system, ठीक है। स्पाईवेयर एंड एडवेयर, नहीं मंसूर के अलावा भी कोई बताए, आप बताएं हसन, स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर मतलब कि कंप्यूटर में कुछ ऐसी चीज इंस्टॉल है जो किसी के साथ जो लिंक हो, जिससे आप यूज कर सकें, की इंफॉर्मेशन पास कर सकें। The spyware actually indicates is kind of a hidden program with some bad intention, with some other objectives, and if it is installed then देखें वहाँ पे हमने ड्राइव बाय डाउनलोड्स में क्या कहा था, क्या बात की थी कि आपको ऑप्शन नजर आता है, you see the option on the website to actually install or just select OK, ठीक है, and then it is installed, ठीक है, आप उसको, लेकिन in case of spyware there is no this kind of message that okay are you sure you want to install this, no, it will be actually installed, ठीक है, ऐसे ही है ना, hiddenly, and then obviously whatever is the intention, like you want to manipulate data or you want to do something else, ठीक है, or sometimes you actually want to get the user's credential, ठीक है, यूजर नेम, पासवर्ड, सो ऑन, ठीक है, जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, और उसके लिए आप स्पाईवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। और डिफरेंट देखें, you can monitor the web surfing, you can actually also you can get the logs of the keyboards, ठीक है ना। एक ये भी हो सकता है ना कोई फिजिकल कोई मैकेनिज्म हो टू गेट दिस, और एक ये भी हो सकता है, एक सॉफ्टवेयर का भी एक मैकेनिज्म हो सकता है कि you whatever the key you press you actually are there is some kind of the log that is maintained whatever key you press, ठीक है, और take snapshots of computer screen quite possible, ठीक है, send reports back to your host computer, ये सारे काम हो सकते हैं। एडवेयर क्या है जी? नहीं देखें, जो सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग वाली बात है ना, तो वो तो अगेन
their objective is in general is to actually provide the services to the users. They have the good intentions, but if they have some malintention, they have some bad intention, they can do it. Obviously they can do it. ठीक है, आपको पता है मतलब ये रिपोर्टेड एविडेंसेस या रिपोर्टेड जो है ना इवेंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे कम्युनिकेशन के जो सिस्टम्स इंस्टॉल करके दिए जो भी, अब जाहिर सी बात वो बड़े नाम है ना, जैसे सिस्को है या सिमंस है या दूसरे तीसरे और इस तरह के हैं, ठीक है। एंड वो जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंस्टॉल हैं हमारे यहाँ पे, हम कैपिटल सिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। पता चला कि इनमें से वो कम्युनिकेशन को जो है, ठीक है, वो क्या कहना चाहिए इसको, इंटरसेप्ट कर रहे हैं, इंटरसेप्ट नहीं कर रहे, वो उसको डायरेक्टली देख रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, उसको वो सारी उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से मतलब होता है, हो सकता है जब मैन्युफैक्चरर खुद ही जो है वो जो भी अब आपको कोई जैसे नादरा के बारे में भी वैसे कहते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं, ठीक है, कि जब अमेरिका ने ये सिस्टम दिया, ठीक है, तो ये तो खैर वैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी भी हो सकती है, ठीक है, मतलब ये हिडन नहीं है, ये हो सकता है कि ऑन पेपर हो या एक वैसे अंडरस्टैंडिंग हो कि भाई वो जो नादरा का सिस्टम था वो सारी डेटाबेस उस पे अमेरिकन को भी एक्सेस थी, ठीक है। तो लेकिन इस तरह की एग्जांपल मैंने आपको इस चैप्टर के वो जब सेमेस्टर के स्टार्ट में भी दी थी कि इस तरह के स्पाईवेयर जो है ना, मतलब इक्विपमेंट दिया सिस्को ने ईरानियन गवर्नमेंट को, ठीक है, और वो जस्ट टू स्पाई देयर पब्लिक, ठीक, तो क्वाइट पॉसिबल, सही है। एडवेयर क्या होता है? एडवेयर अनवार आप बताएं। नहीं, कोई और बताएं। उसामा आप बताएं। ठीक, तो ये आपके ख्याल में मतलब यूजर की इंटेंशन, यूजर की विलिंगनेस लेता है इंस्टॉल होने के लिए? नहीं, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी यूजर नहीं चाहेगा कि भाई उसको, मतलब इट्स काइंड ऑफ रेयर इवेंट ना कि यूजर खुद विलिंगली कहे कि हमने ये लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जैसे वो फेसबुक के कॉन्टेक्स्ट में, फेसबुक का जो वो एक कंपोनेंट हम डिस्कस कर रहे थे ना बीकन के नाम से, ठीक है, तो यूजर्स इसको नहीं लाइक करते हैं कि भाई उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए एक्टिविटी की और उनके अकॉर्डिंगली वो जो है लाइक और डिसलाइक पे वो करना चाहिए। So anyways, different companies actually install such kind of programs that are actually adware, and they actually then suggest you different kind of ads based on your activity, ठीक है, and obviously it is again kind of a privacy violation, ठीक है ना, इसीलिए इसको malware के उसमें हम पढ़ रहे हैं उसमें। और ये देखें बैकडोर ट्रोजन्स जो है वो that kind of programs are used to actually launch some other kind of spyware and adware, ठीक है। बोट्स क्या होता है? बोट्स बोट क्या होता है भाई? मोहम्मद आप बताएं। अब आजकल ये बड़ा कॉमन है यार, चैट बोट जैसे होते हैं। वो चैट बोट क्या कर रहे होते हैं? चैटबॉट के ऑटोमेटेड रिप्लाई होते हैं, हम पहले से सेट कर देते हैं, फिर वो मशीन लर्निंग के थ्रू वो लर्न करके ऑटो रिप्लाई कर रहे हैं। So it means bot is actually a computer program that is trained in a way that I mean they can actually fulfill some specific objective, ठीक है। तो अगर इंटेंशन सही नहीं है तो फिर वो बॉट क्या करेगा? कोई बैड इंटेंशन काम करेगा ना तो देखें, फर्स्ट बोट्स एक्चुअली developed for the kind of legitimate activities, like for the chatting purpose, like for internet games, ठीक, और भी और बहुत सारे legitimate यूजेज हैं इसके, ठीक है। कैसे, कोई एग्जांपल दें इसकी, कोई और इसके अलावा जो यहाँ पे लिखी है?
स्पैम फिल्टरिंग के लिए भी हो सकता है, यस, ठीक है, और भी बहुत सारे यूजेज हो सकते हैं, ठीक है। आप कंटेंट को वैसे स्पैम फिल्टरिंग भी हो सकती है, लेट्स से कंटेंट डाउनलोड हो सकता है, और डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज हो सकती हैं दैट आई मीन दैट कैन बी एक्चुअली डन बाय यूजिंग बॉट्स, ठीक है। यहाँ पे देखें कि इलीगल एक्टिविटीज क्या है जो बॉट्स के साथ कर सकते हैं। नंबर 1 इज डिस्ट्रीब्यूटिंग स्पैम। क्या मतलब है इसका? कोई और बताया भाई, स्पैम क्या होता है? ये तो हमने डिस्कस किया हुआ है ना, पढ़ा हुआ है, ये है, बताएं। बताएं बताएं, शाबाश। अच्छा ये देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये कमांड एंड कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। तो कमांड एंड कंट्रोल प्रोग्राम मींस अटैकर कंप्यूटर्स, ठीक है, फ्रॉम वेयर यू एक्चुअली जनरेट द अटैक, ठीक है ना, फ्रॉम वेयर यू एक्चुअली कंट्रोलिंग दैट बॉट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिंग स्पैम, चले मंसूर बता दें, आप ही बता दें। जैसे स्पैम सेंड करने के लिए बॉट यूज करते हैं, बॉट को हम बता देंगे ईमेल लिस्ट है, इसमें से एक एक ईमेल सेंड करते हैं। Exactly. Rather than manually doing this task to actually send emails to like thousands of email users on thousands of email addresses, bot is actually doing it by itself. ठीक है, just actually बड़ा आसान है ना ये काम। अभी बॉट्स बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज लाइक ओके यू वांट टू गेट एक्चुअली यू वांट टू कलेक्ट द पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स अभी इधर आगे आ जाएगा। अच्छा चलें उससे पहले हम इसको ये बोट हमने पढ़ लिया। बोट नेट्स क्या होते हैं? Botnet is actually the collection of different computers that are used for that specific purpose, ठीक है। And obviously you have some controller, I mean there is some computer from where you are actually controlling that all bots. Actually you attack on different computers, you use them as a platform as your bots, ठीक है। और फिर वो पूरा वो जो भी नेट एक मतलब एक या मोर देन वन नेटवर्क यू हैव लॉट ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर वर्किंग आर एक्टिंग एज योर बोट्स, ठीक है, एंड दे आर डूइंग सम स्पेसिफिक टास्क, ठीक है ना। बोटनेट बॉट हर्डर या बोटनेट हर्डर भी हो सकता है। वो कौन होगा? द कंट्रोलर ऑफ द बोटनेट, ठीक है, या कंट्रोलर ऑफ द बोट, ठीक। एक मिनट आगे ये जो है ना इसकी, चले आगे वो स्लाइड्स आ रही है उसके ऊपर जाके बात करेंगे डिनाइल ऑफ सर्विस की। ये जो बोट्स का एक बड़ा मतलब एक यूजेज हो सकता है, ठीक है। डिफेंसिव मेजर्स क्या हो सकते हैं इसको रोकने के लिए? क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? सिक्योरिटी पैचेस अभी हमने बात की। नदीम खान, ये क्या मतलब है सिक्योरिटी पैचेस? बताएं। ऐसी वाली कोई बात नहीं है। सिक्योरिटी पैचेस क्या होते हैं? इमाद आप बताएं जी। अपडेट्स जो होती हैं, जो भी लूप होल्स हैं सिस्टम के, ठीक है, उसको फिक्स करने के लिए जो भी आपका कोई वो पीस ऑफ कोड है ना, ठीक है, दैट इज सिक्योरिटी पैच, ठीक है। और आप देखें टाइम टू टाइम जो है वो इस तरह के आती रहती हैं अपडेट्स, ठीक है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स की भी और डिफरेंट और सॉफ्टवेयर्स की भी जो डिफरेंट देखें जो। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लूप होल्स होंगे ना, सिक्योरिटी लूप होल्स, ठीक है, ये ऐसा नहीं है। जो भी कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जैसे अभी जो रिसेंटली ये जो बैंक्स का जो हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि वो जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर थे, ठीक है, जो बैंकिंग सिस्टम्स थे, उनके अंदर प्रॉब्लम था ना, उनका कोई सिक्योरिटी लूप होल था, ठीक है, दैट वाज एक्चुअली टारगेटेड, ठीक है, और फिर थ्रू दैट सिक्योरिटी लूप होल देखें इनफैक्ट होता क्या है कि एक लूप होल जो है, ठीक है, सिक्योरिटी लूप होल, कोई वल्नरेबिलिटी, ठीक है,
that is identified by the company. They actually then come up with the security patch, ठीक है, and after that security patch, ठीक है, मतलब जो इस तरह के लोग हैं जो डिफरेंट सिस्टम्स पे नेटवर्क्स के ऊपर अटैक्स करते हैं, ठीक है, वंस दे एक्चुअली नो दैट ओके दिस इज समथिंग दैट इज वुलनरेबल, ठीक है, दे टारगेट दो सिस्टम दैट आर नॉट एक्चुअली अप टू डेटेड, ठीक है ना, जो अप टू डेट सिस्टम नहीं है तो फिर उसको टारगेट कर लेते हैं, उसको जो अगर जो अपना रेगुलर अपडेट करता है अपने जो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम है तो फिर उस वहां पे चांसेस कम है, ठीक है, उसको टारगेट करने के। एंटी मलवेयर टूल्स क्या होते हैं, जैसे एंटीवायरस होता है, ठीक है, एंटी मलवेयर उसी की वही है ना, हम इन जनरल एंटीवायरस कहते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में देखें तो एंटी मलवेयर है। और अगेन इसमें भी क्या होना चाहिए, इट शुड बी रेगुलरली अपडेटेड, अगर अपडेटेड नहीं होंगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, फिर अगेन आप जो है ना पॉसिबल विक्टिम हो सकते हैं इफ यू हैव आउटडेटेड एंटी मलवेयर। फायरवॉल क्या होता है, व्हाट इज फायरवॉल? फायरवॉल भी उसी, फायरवॉल वैसे है ट्रैफिक का फिल्टर है, इट कैन बी एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जस्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है, प्रोग्राम दैट एक्चुअली फिल्टर्स आउट योर ट्रैफिक, ठीक है, whatever is the malicious code that should be stopped, ठीक है ना, that shouldn't be actually communicated on the network, ठीक है। तो फायरवॉल्स जो है वो इंस्टॉल होते हैं डिफरेंट पर्सनल कंप्यूटर्स पे भी हो सकते हैं और नेटवर्क्स के ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है। इससे वो मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया कि वो एक आईएसपी जो है उसके अंदर लेट 90s की जब नया नया इंटरनेट आया था पाकिस्तान में, तो वहाँ पे वो एक साहब कहने लगे जो उनके कंसल्टेंट थे आईएसपी के कि भाई उनको मैंने कहा कि वी नीड फायरवॉल, ठीक है, to actually have proper security, ठीक है, more security, we need firewall। तो कहते हैं वहां पे जो साहब थे ना वो कहने लगे कि ठीक है सर हो जाएगा। तो कहते हैं जब मैं नेक्स्ट विजिट पे गया मैंने उनसे पूछा कि भाई मतलब मैंने आपको रिकमेंड किया था कि फायरवॉल होनी चाहिए, ठीक है, तो वो कहने लगे कि आए मैं आपको दिखाता हूँ ना। वो कहते मैं थोड़ा सा आई वाज सरप्राइज कि ये मतलब इसकी बात पता नहीं क्या है, लेकिन कहते मैं चल पड़ा कि हो सकता है मुझे कहीं किसी कंप्यूटर पे लेके जा रहा है किसी सिस्टम पे। वो कहते हैं बाहर लान में ले गया, उधर एक दीवार बनी हुई है और उसके ऊपर वो बाल्टियां वाल्टियां रेत वाली लटकाई हुई हैं, ठीक है। मैंने कहा कि मैंने कहा ये क्या है, उसने कहा सर आपने कहा था कि एक फायरवॉल होनी चाहिए, तो देखें हमने वो फायर फाइटिंग का वो सोच रहा था कि वो आपने देखा है ना जैसे होता है अक्सर फायर एक्सटिंग्विशर जैसे होते हैं, तो वो एक पुराना मैकेनिज्म ये भी है। जब हम पुराने जो है ना वो पंप पे जाते थे तो उधर रेत की बाल्टियां लटकी होती थी, अभी भी शायद होगा। तो फायरवॉल इज एक्चुअली द सॉफ्टवेयर, ठीक है। अच्छा, साइबर क्राइम्स एंड साइबर अटैक्स। फिशिंग क्या है? मुश्तबा क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, कंप्यूटर के साथ तो नहीं खेल रहे हैं? पक्की बात है। अच्छा, फिशिंग क्या है? Exactly, to actually fake website that actually represent their self as a original one। ऐसा ही है ना। मतलब कोई बैंक है, लेट्स से बैंक ए है, उस बैंक ए की वेबसाइट जो है बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह की कॉपी बना के, ठीक है। और आजकल इधर पाकिस्तान में पता नहीं, मुझे तो बहुत इस तरह की ईमेल्स आती है ना कि आपका HPL अकाउंट, मेरा अकाउंट है ही नहीं HPL में ना, तो HPL अकाउंट आपका डीएक्टिवेट हो गया है, यू नीड टू विजिट दिस लिंक टू एक्चुअली एक्टिवेट योर अकाउंट, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट बैंक्स के नाम से जो है ना वो ईमेल्स आती हैं, ठीक है। और ये आपने देखा होगा आजकल एक अवेयरनेस कैंपेन चल रही है कि भाई बैंक्स, ठीक है, दे नेवर आस्क फॉर योर पिन, फॉर योर अकाउंट नंबर एंड योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऑन you actually no need to reply to phone calls, ठीक है, such phone calls, ठीक। और इस तरह की और जो भी है ना पॉसिबिलिटीज, उससे वो कहते हैं कि आप इसको मतलब बी अवेयर, ठीक है।
ATMs वगैरह पे भी उन्होंने लगाया हुआ है। तो फिशिंग इज एक्चुअली गेट द योर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, थ्रू सम काइंड ऑफ फेक वेबसाइट्स, ठीक है, बट रिजेम्बलेंस इज टूवर्ड्स क्वाइट ओरिजिनल साइट्स ना, ठीक है। तो ये दैट इज फिशिंग। और आमतौर पे होता क्या है, थ्रू ईमेल, ठीक है ना, आपको ईमेल के थ्रू वो आपको ले जाते हैं, रीडायरेक्ट कर देते हैं किसी और साइट के ऊपर। अपेरेंटली लिंक भी आपको ऐसे नजर आता है कि ये ओरिजिनल है, ठीक है ना जी। सर यहाँ पे फिशिंग और फार्मिंग के बीच में थोड़ा सा फर्क होना चाहिए, बिकॉज फिशिंग जो है ना वो इसमें होता है कि आपको बेट आता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो बेट से कोई सपोर्ट नहीं, इस तरह से वो फिशिंग के सिनेरियोस में आते हैं। लेकिन फार्मिंग में होता है कि आपके पास कोई फेक वेबसाइट बनी होगी, यहाँ एक लेजिटिमेट आपको वो नजर आएगा कि ठीक है ये पूरी वेबसाइट है, आप देख रहे हैं, यहाँ लॉगिन एंट्री इस तरह की बनी होगी। हाँ तो वो दोनों में से ठीक है। फिशिंग इज एक्चुअली बेसिकली व्हेन यू एक्चुअली यू गेट द ईमेल, ठीक है, वो ईमेल जो है दैट एक्चुअली ईमेल्स आर दैट लिंक, वेब लिंक रीडायरेक्ट्स टू समवेयर एल्स, ठीक है। तो ये दैट इज फिशिंग, ठीक हो गया। और फार्मिंग तलहा ने बताया कि वो क्या है कि एग्जैक्टली जब आपको उस तरह की लुक एंड फील मिल रही है वेबसाइट की जो कि ओरिजिनल नहीं है, ठीक है, और उसके ऊपर आप जो है ना कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और कोई भी एक्टिविटी करते हैं, दैट इज फार्मिंग, ठीक है। अच्छा, स्पीड फिशिंग क्या है? जी कोई और बताए ना, आपके पीछे फैजान है ना आप? फैजान बताएं, फिशिंग समझ आ गई आपको क्या है? वो तो हमने कहा फार्मिंग है, हैं? हाँ, आमतौर पे ईमेल्स, थ्रू ईमेल्स, ठीक है, वो आपको वो मतलब दे प्रिटेंड, ठीक है, द ओरिजिनल वन बट दे आर नॉट, ठीक है। तो ये चीज फिशिंग है। तो स्पीड फिशिंग है व्हेन यू हैव द टारगेटेड विक्टिम्स, ठीक है, टारगेटेड पॉसिबल विक्टिम्स, ठीक है, टारगेटेड यूजर्स हो सकते हैं, जैसे नहीं लिखा यहाँ पे, मतलब देखिए लेट्स से कि जो आपके एल्डरली यूजर्स हैं, ठीक है, एक कॉमन परसेप्शन है ना कि वो इतना ज्यादा शायद अच्छा नहीं समझते होंगे, अंडरस्टैंडिंग उनकी अच्छी नहीं होगी टेक्नोलॉजी के वाले से, तो उनको ज्यादा आसानी से टारगेट किया जा सकता है, ठीक है। वो एक अभी ये इससे मुझे याद आया, वो अभी टीवी पे चल रहा था एक दिन या अखबार में मैंने पढ़ा, एक रिटायर्ड कोई प्रोफेसर थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा जी वो मेरे सारे पैसे उन्होंने लूट लिए लोगों ने, ठीक है, जो भी इस तरह के क्रिमिनल्स थे। तो हुआ कैसे कि उन्होंने उनसे फोन पे वो कोई इन्फॉर्मेशन ली पर्सनल, जो भी, उन्होंने कहा कि अच्छा भी HBL से बोल रहे हैं या जो जहां से भी है, ठीक है। तो उस तरह से वो फिर है, तो मतलब आप बड़ा इजीली कुछ लोगों को, ठीक है, कुछ यूजर्स को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि वैसे आप इसके लिए कोई बहुत ज्यादा आप देखें, जो एक बंदा जो है बड़ा सिंपल सा पासवर्ड लेता है ना, ठीक है, तो उससे भी आप जो अंदाजा लगा सकते हैं ना कि यार ये कितना कॉन्शियस है इस हवाले से या कितना इसके है। तो आप किसी के पासवर्ड जो उसके जो नंबर ऑफ जो कैरेक्टर्स हैं पासवर्ड के, उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना जो है मतलब कितना टेक्निकल है, कितना एक्सपर्ट है, ठीक है। मेरे जैसा बंदा 1 2 3 पासवर्ड रखा हो उसने, ठीक है, और सारी वो चीजों को ऐसे। SQL इंजेक्शन, इसके बारे में कौन बताएगा भाई? SQL इंजेक्शन नहीं, मंसूर नहीं, अभी कोई और वो पीछे से बताएं जी, बताएं आप। यूजरनेम और पासवर्ड की जगह कोई ऐसा कोड डाल दिया जाए जो आपकी डेटाबेस में डेटा उठा ले। ठीक, और पीछे मलिक साहब आप बताएं। नहीं पता? आपके साथ कौन बैठे हुए हैं? उस्मान, मसूद? ऐसे डेटा पे जिनकी सिक्योरिटी प्रॉब्लम है उनको अभी मैंने बताया था ये, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, हैं? बताएं।
तलहा बताएं आप। तो बेसिकली कोई ऐसी डेटाबेस है जो उतनी प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करती है, तो आप उसके अंदर ऐसे सर्च करना चाहिए, डिटेल्स में आ जाते हैं कि हमारे खुद का डेटा जो हम वापस करते हैं उस डेटा के बेसिस पर एक्सप्लॉइटेशन। बिल्कुल सही हो गया। वी सेड के SQL इंजेक्शन इज एक्चुअली द SQL क्यूरी, SQL कमांड, ठीक है, that can actually get the access to the data, ठीक है, the database that is not really secured, or you can actually get your मतलब required information, ठीक है। मिसाल के तौर पे बोर्ड की वेबसाइट है, आपने अपना रिजल्ट देखना है, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप जो है ना एक पीस ऑफ कोड लिख के तो हो सकता है वहां से डेटा रिट्रीव कर लें, उससे पहले कि वो ऑफिशियली अनाउंस करें आप अपनी मर्जी से उसको देख लें, या वहां पे कोई अपनी मर्जी के ग्रेड्स भी लगा दें, ठीक है, हो सकता है ना। तो इस तरह के काम होते रहे, ठीक है। तो फिर वो कहते हैं कि वो साइट हैक हो गई है, ठीक है। तो वो होता बेसिकली क्या है कि कोई इस तरह का काम होता है ना, और ये भी एक काइंड ऑफ हैकिंग ही है ना, ठीक है। अच्छा, अब बात आ गई डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस क्या होता है वैसे, इसके मीनिंग्स क्या आपको समझ आ रही है? ये तो वैसे जो है ना मंसूर माशाल्लाह जो है काफी नॉलेजेबल है इस टॉपिक के ऊपर, तो मंसूर को इधर बुला के तो यहाँ इससे लेक्चर डिलीवर किया जा सकता था, होना चाहिए था, ठीक है। नहीं अच्छी बात है ना। आप मैं ये कह रहा हूँ इसलिए कि बाकी लोग इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है, उनको भी, बाकियों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। और वैसे रिकॉर्डिंग ना चल रही होती तो मैं जरूर आपको कहता कि आप इधर आए और इनको एक्सप्लेन करें। हाँ जी बताएं, डिनाइल ऑफ सर्विस मानूर बताएं आप। सही होता कैसे है ये? जी तलहा बताएं आप। बेसिकली रिक्वेस्ट होती है जब भी आप कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं तो आप अपने रिक्वेस्ट वगैरह भेजते रहते हैं कि वो फ्लड हो जाता है नेटवर्क या उसकी वजह से इनएक्टिव हो जाता है। या कई बार ऐसे भी होता है कि CPU अगर साइकिल्स की बात हो रही है तो इतनी ज़्यादा उसका कोड ज़्यादा जाता है कि वो ओरिजिनल काम छोड़ के जो बोगस कोड है उसी को प्रोसेस करते रहता है, वो स्टक हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तैमूर, तलहा ने क्या बताया है? सर बीच में से निकाल लें, पूरी सर के बगैर बात करें। अच्छा देखिए, डिनाइल ऑफ सर्विस इज ए काइंड ऑफ अटैक, ठीक है ना, दैट इज एक्चुअली यूज मे बी थ्रू बोट्स, जो भी मैंने आपको बात की थी ना कि आगे जाके डिस्कस करते हैं, ठीक है। what actually we do, we actually, I mean through this kind of attack, we actually consume the resources, ठीक है। there is a server which actually provides the services, ठीक है, some kind of services, and rather than the legitimate users of that site, ठीक है, those users access this service, some kind of bots actually engage that server, ठीक है, in a way that server cannot actually respond to the legitimate users, ठीक है। समझ रहे हैं ना कि मतलब इस अटैक के अंदर जो है वो ये नहीं है कि कोई काइंड ऑफ हार्मफुल एक्टिविटी है उस तरह से कि जी जैसे हमने पीछे बात की ना कि जैसे लेट्स से स्टीलिंग ऑफ डेटा है, ठीक है, वर्म के केस में हमने जैसे बात की, ये नहीं। बेसिकली क्या कर रहा है, जैसे तलहा ने भी बताया कि लेट्स से कि उसके जो CPU साइकिल्स है, ठीक है, उनको जस्ट कंज्यूम किया जा रहा है, मतलब मैं ही अपने सिस्टम से थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा हूं किसी एक स्पेसिफिक साइट के लिए, ठीक है, तो बाकी जो बाकी लोग हैं जो साइट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, दे विल बी एक्चुअली डिनाइड, ठीक है ना। तो दैट इज डिनाइल ऑफ सर्विस, समझ रहे हैं। किसी भी स्पेसिफिक वेब सर्वर के लिए आप उसको इतना एंगेज कर दें कि वो बाकी यूजर्स को अवेलेबल ना हो, दैट इज डिनाइल ऑफ सर्विस। अब इसको ये देखें कि अपेरेंटली तो इट्स नॉट द रियली हार्मफुल ना, इन द सेंस के जी डेटा स्टीलिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन अगर एक बैंक की साइट है तो ठप हो गया ना बिजनेस, कोई भी ई-कॉमर्स साइट है तो उसका बिजनेस तो ठप हो गया। जी बताएं मंसूर। एक DDoS अटैक जब ये न्यू आए थे DDoS ये भी पीछे दिया, तो
होता था डेटा स्टीलिंग के लिए जो फायरवॉल्स थी वो उनको डिडॉस करके वो यानी ब्लॉक कर देते थे, वो फिर फायरवॉल नहीं चल रही होती थी जिससे वो अपनी यानी क्वेरीज वगैरह से करके और इस तरह की वो डेटाबेस। ठीक है, बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे डिनाइल ऑफ सर्विस बेसिकली है क्या, ठीक है ना। तो इनफैक्ट आप क्या करते हैं कि वो रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे होते हैं। इसी तरह से जो सेकंड वन है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस में क्या होता है, you actually involve lot of other computers, ठीक है, lot of others actually the botnet, ठीक है, and through botnet you actually engage those servers, those services, ठीक है, और क्या होगा, काइंड ऑफ डाउन हो जाएगी ना आपकी सर्विस। और ये जो मंसूर बता रहे हैं वो काम भी हो सकते हैं कि जब आपने किसी एक स्पेसिफिक उसके अंदर उसको एंगेज कर लिया, ठीक है, लेट्स से कि फायरवॉल को, ठीक है, तो सारा कुछ उसके बाद आप उस पर दूसरा अटैक हो सकता है और दूसरी तरह से आप जो स्टीलिंग पॉसिबल है, ठीक है ना, दो दूसरी तरह से वो हो सकता है। समझ गए आप? बाकी लोग इधर से सारे अनवार, साइबर क्राइम क्या है? ये सारी हम ये कहानी जो राम कहानी पढ़ रहे हैं ये साइबर क्राइम्स ही है ना बेसिकली, के इन विच यू एक्चुअली I mean any crime using internet, ठीक है, the use of technology for the crime, that is cyber crime। अब cyber crimes के अंदर ये जो different, ये जैसे denial of service है ना, ये एक type है, एक possibility है, ठीक है, और different organizations or different individuals at different times actually have some reasonable kind of क्या कहना चाहिए इसे, kind of reasonable activity, ठीक है, that was obvious, that was actually noted by the others, ठीक है, कि भाई ये एक reasonable एक activity हुई है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। ये कुछ नाम लिखे हुए हैं इन लोगों ने डिफरेंट टाइम्स के ऊपर, डिफरेंट तरह के जो है ना डॉस अटैक्स जो है किए, और डिफरेंट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स लाइक इन थाउजेंड्स और इवन इन मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, उनको एंगेज कर लिया और उनको उस तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को और उनको डिस्टर्ब किया। तो ये सारी इनकी स्टोरीज लिखी हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, तो आप इसको अपने तौर पे पढ़ें इसको। अच्छा, राइज एंड फॉल ऑफ ब्लू सिक्योरिटी। ब्लू सिक्योरिटी वाज एक्चुअली द सॉफ्टवेयर दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इजरायली कंपनी टू एक्चुअली टू काउंटर द स्पैम ईमेल्स, ठीक है, and how it works, it was actually kind of bot, and then that bot was actually used to regenerate kind of the spam emails for those actually systems which are actually originally generating the spam emails. They target the attackers, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात, कि इस तरह का आपने एक सिस्टम डिजाइन किया जो क्या कर रहा है कि जहां से स्पैम ईमेल्स जनरेट हो रही हैं, ये सिस्टम भी उन्हीं को अटैक करता है, उन्हीं पे अटैक करता है, उन्हीं को एंगेज करता है, उन्हीं को फ्लड करता है थ्रू देयर स्पैम ईमेल्स। समझ रहे हैं? ये देखें, स्पैमर स्टार्टेड रिसीविंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑप्ट आउट मैसेज, ठीक है, तो रिजल्ट क्या हुआ, आउट ऑफ 10 top spammers, ठीक है, out of 10, 6 agreed to actually stop this spamming service for those clients, for those users who are actually who are having this blue security software, ठीक है। This is the rise, this is part 1, ठीक। part 2 क्या है, the fall। one spammer, pharma master, नाम भी बड़ा उसने जबरदस्त रखा, pharma master जो है, क्या पता पहले फार्मेसी का स्टूडेंट रहा हो। Then they actually started to spread more spam emails, like 10 to 20 times more than this the original number, ठीक है, and they actually also they also sent kind of threatening messages to those users who actually have this blue security tool. Ultimately, blue security, they actually withdraw this service and they actually kind of this was actually their fall,
10 to 20 टाइम्स के ऊपर जब उन्होंने फ्लड किया उनको, तो फिर वो बहरहाल उसको हैंडल नहीं कर पाए, ठीक है ना, वो अगेन काइंड ऑफ डिनाइल ऑफ सर्विस सिचुएशन क्रिएट हो गई एंड दे एक्चुअली अल्टीमेटली दे टर्मिनेटेड देयर सर्विस। अभी देखें ये रिसेंट टाइम में बड़ी इस पर डिबेट हुई है कि भाई जो ट्रम्प जो इलेक्शन जीता है तो वो उसके अंदर जो है रशियन इन्वॉल्वमेंट थी, ठीक है। अगर आप ये बुक में जाके पढ़ेंगे एस्टोनिया, जॉर्जिया, ये जो 2007, 8, 9, ठीक है, डिफरेंट साइबर अटैक्स इन दीज कंट्रीज फॉर डिफरेंट सोर्सेज एंड द रीजन, द कोर रीजन इज देयर कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया, ठीक है। And the findings are actually that yes, Russia was involved in those attacks, ठीक है। तो हो सकता है ना कि ये एक अभी एक नया एक वो है ना पैराडाइम है साइबर वार, ठीक है, और कंट्रीज आपस में वो एक दूसरे के साथ एग्जाइल्ड तिब्बतियन गवर्नमेंट की भी है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड साउथ कोरिया, ये सारी डिफरेंट जो है ना केस स्टडीज गिवन है बुक के अंदर, ठीक है। इससे एग्री करते हैं आप? एग्री करते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो है वो अटैक्स होते हैं, ठीक है ना। इवन आपने कई दफा पढ़ा होगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी होता है, वो कई दफा हमारी मिनिस्ट्रीज की साइट्स को हैक कर लेते हैं, ठीक है, उनको, और शायद पाकिस्तानी भी कई दफा जो है इंडियन साइट्स के ऊपर जो है ना जाके तो वो करते हैं कोशिश, ठीक। तो मतलब ये कोई वो नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है, इट्स काइंड ऑफ ओपन सीक्रेट, ठीक है। Between different countries they have, I mean, these kind of war. अच्छा, ये थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है, देखें, जस्ट लिटिल बिट डिटेल है, बस घर जाके पढ़ोगे पक्की बात है। ये देखें, ये उसने डिटेल लिखी है जॉर्जिया के अंदर जो है ना इन 2009, ठीक है, कि फेसबुक, गूगल, ठीक है, लाइव जर्नल, दीज साइट्स वर एक्चुअली काइंड ऑफ ब्लॉक्ड, ठीक है। द रीजन वाज एक्चुअली देयर वाज अ ब्लॉगर who was like a kind of active blogger against maybe Russia, तो Russian actually then they tried to actually give them a lesson, ठीक है, और वो उनकी सर्विसेज जो है ना वो डाउन कर दी। And attack occurred on actually the first anniversary of the war between Georgia and Russia, ठीक है। यहाँ पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट टाइम जो है अब अगले वीक में तो नहीं होनी ना क्लासेस हमारी, अब उसके बाद मिलेंगे, ठीक है, सेकंड सेशनल के बाद इंशाल्लाह हम मिलेंगे।